So far we have already covered the multi-indexing. Now today we are going to apply some grouping, and we will check that how we can do the um, summarization or aggregation using these uh, pandas commands. Okay, so I am taking a new file to import, that is cburn, and that is SNS is the abbreviation for that. And inside this SNS, there is a tips file is there I am using, right? So when I am taking a file from the package, till now we were taking the file from any storage. So for that we were using read underscore CSV, or read underscore Excel, or read underscore JSON. We were using like that. Now what we are going to do is we are loading a file through file from a data, from a package. Okay, so for that we are using load underscore dataset, and then info and head. So info gives you the information about the file, that the dataset. So you can see this is the general information about the dataset. So memory is 7.4 KB, so it's not a big dataset. Total 244 entries are there. Indexing is starting from 0 to 243. Total 7 columns are there, where there is total bill, tip, sex, smoker, day, time, and size. These are all the general information about this file. Okay, and there are four variables are in form of category, two variables are in form of float, and one variable is in into integer. Okay, so then I have taken tip of head. So what head is giving is it shows top five records, right? So if I have to get the top five records, so I am giving head. If I have to get the below five records, I have to use tail, right? So head. Give me a second. Okay, so here what I'm doing is head is for top five records and tail is for below five records. So let's import this. Along with this importing, I am going to use the pandas package as well, because we would require pandas over here. So import pandas as PD. Okay. Since we are executing this first time in this entire environment, so that's why I'm doing this. Okay, so it will take some time because it is loading two packages, and from that it is loading the data set. Okay, let okay, so this is loaded now, and you can see these are the top five rows, and in the same way I have given tips of tail. So now it is giving the last five rows, so starting from 239 to 243. If so if you want, you can give the numbers also. Suppose if I give the 10, so it will return the uh, last 10 indexes, right? So if you do not give anything, by default it returns the 5. If you give the numbers, it will return that many number of indexes, where in index rows. Okay, you can see the shape of this is this 24 and by 7, and sorry, 244 by 7, and then indexes starting from 0 to 244. Okay, now what I'm doing is I am setting the index on sex. Okay, so I have okay, first of all, I am taking the last 20 values of this file in from tips into tip. Okay, so first of all I have taken this, so these are last 20, and on this I am setting the index as sex. Okay, so now you can see here sex male, and total bill is coming like that. Okay, and this thing when I am setting, so now you can see here, this is temp index आ गया, and
In the same way, if we want to set the multiple index, so we have set sex and size as multiple index, and here you can see like this. Okay. Now, I want to sort it index wise. Index wise means I want to sort means first index is sex and second index is size. So now first when I'll sort it based on the indexes, at first it will size it will a sort based on the sex and then gender. So when I am doing sort underscore index, so this is our data frame name, and I am doing sort underscore index. Okay, so when I have to sort it index wise, and in place is equal to true to make the changes permanent, right? So now you can see here it has it has sorted both a male and then size and then female and size like it has created. Okay, now you can see if you want to access just the male, so I am giving LOC as male. Okay, so it is just giving. Now you can see if this would not had been the index, अगर ये मेल इंडेक्स का पार्ट नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता? सपोज यहाँ पे अगर आपके पास टेबल यहाँ पे हमने इसको इंडेक्स में सेट सेक्स को हमने इंडेक्स में सेट नहीं किया है, तो अगर अभी हमें यहाँ पे सिर्फ मेल वाली वैल्यूज निकालनी होती तो हमें क्या करना होता? कैन एनीबडी टेल? कोई बता सकता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच आई एम आस्किंग. कैन एनीबडी टेल? नोबडी प्रैक्टिसिंग? आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? सर सेक्स और मेल को लिख देते एक साथ में ना. So basically you have to apply the condition. So what you have to do is now you have to write tip of uh, tip of x is equal to, and then here you have to give male like this. You have to give the condition. Okay. So now you can see here only male is coming, right? तो अगर हम इसको एज अ इंडेक्स सेट नहीं कर रहे तब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी तो हम इस तरह से लिखेंगे, राइट? लेकिन जब हमने यहाँ पे तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जैसे जैसे आप इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तभी आपके प्रैक्टिस में आएंगी. अदरवाइज आप जितनी जल्दी यहाँ पे समझ रहे हो उतनी जल्दी भूल भी जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, right? That's the reason I am recommending the practice again and again. Just 1 hour is more than enough for practicing, right? अब यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा. यहाँ पे जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है. As soon you will practice, it will be on your tips very soon, right? So please start practicing. Here you can apply the multiple conditions as well. So in multiple conditions, you can apply and operation, and in and operation, suppose you just want to see the data of lunch only. Okay, so here you can apply time, sorry, tip of, and here you can give time, and here you can give is equal to, and I have given lunch. Okay. टिप स्पेलिंग बराबर. हाँ, यहाँ पे टिप होगा, and also we have to confine this into the parenthesis. Then only it will work. Without parenthesis, it will not work. Okay, so we have to give it like this, and you can see now it is just giving the mail and lunch data over here, right? तो इस तरह से आप कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अब अगर हमने यहाँ पे इसको एज अ इंडेक्स सेट किया है तो अब इंडेक्स में सेट करने में आपको सिर्फ यहाँ पे एलओसी यूज करना है, और एलओसी में हमने यहाँ पे मेल दे दिया, राइट? क्योंकि अब हम सेक्स को ऑलरेडी
हम यहाँ पे एज अ इंडेक्स सेट कर चुके हैं, राइट? तो अब यहाँ पे जस्ट आई हैव टू गिव द मेल एंड इट विल गिव ऑल द डेटा अबाउट मेल ओनली. ओके, क्लियर? एनी डाउट? Now comes the part of grouping or aggregation. We can say. So now now we know how to set the index. Now using these indexes, we'll try to um, do the aggregation in our data. So we'll do the grouping. Okay. So in this tips, this is a full file, and here I am doing the grouping, group by days. Okay. So here you can see we have this day over here. So Friday, Saturday, and like that. Then yes, and other days are all are also there in the main file. So main file is where it is. Tips tail. So Sunday is also there. Saturday, Thursday. Yeah, everything is there. So we'll start grouping based on these things, right? So here I am setting the group by variable as day, and we have stored this into by day. Now, if you try to print the by day, it will not store, right? Because here is aggregation. So aggregation does not show the output. Aggregation shows the calculations. Okay. So now here this by day has been created where the entire data of tips is grouped based on the day. Now what I will do is I am doing the counting by day dot count, right? By day dot count I am doing. So when I have done counting over here, so okay, by day was not executed here. Now it is executed and now it is defined. So when I have done the counting, so based so on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday, how many values are there for total bill, for tip, for sex, for smoker, for time, for size? How many values are there? It has shown those values. Now another that is sum. So in aggregation, sum function is also there. So I'm using sum and I'm executing this. So you can see here now it is showing the sum of individual days, right? So based on total bill, based on the tip, based on the size. So whatever the numeric values are there, it is doing the sum. Here in case of count, it was counting everything, right? So it was counting total bill, also it was tip and sex and smoker and time and size, right? So size, well, means time was about lunch and dinner, then day was Friday and sorry, day we are doing the aggregation, then a smoker was yes, no, like that. So there were different kind of variable were there, and it was being counted for everything. But when I'm doing the sum, it can do sum only for the numeric values, right? So it has done the sum for numeric value. So you don't need to define that which is the numeric value. It will automatically identify which is the numeric variable and it will return the result based on that. Okay. Then you can do the mean also. So average of bill is average of bill on each day, and tip on each day and size. So here you can see the total average bill value on Sunday is the highest. Average bill on Friday is the lowest. Right. Average tip on Sunday is the highest. Right. You so like this you can do these aggregations. Then you can try grouping on something else. So like um, I'm grouping based on the time, right? So when I am grouping based on the time and then I'm doing sum, so based on the time it has shown the total bill on lunch and total bill on dinner, right? Then so like this you can apply these aggregations. So you can try as many aggregation as you can, and it will confine data based on that. Okay. So let's do some more operations on this. So like if I have to find some unique values, like the day column is there in day, I have to find how many unique values are there, right? So I'll use the unique function.
right? So unique, this will return how many unique values are there, right? So like we were doing the distinct in the SQL, and we were doing the remove duplicate option, right? So in the same way, this also works, right? Then n unique. So n unique returns how many number of unique values are there, right? So that returns the n unique. Okay. So, for example, if you want, means suppose you are working on data where based on month is values has to be aggregated, right? And month name are written, and now you have done the unique values, and you have tried finding unique value. You have found it something suspective, so you have done the n unique. Now, number of months are just 12. Okay, so the count of number of months cannot increase beyond 12, right? So if suppose if you find the number of unique months is 15, then you can be assured that there is something wrong, right? Now, some days are wrong, or people have written the same name with the different identity, right? Someone has written Jan, some has written January, someone has written August, and some other people has written AUG, right? So both will be treated as the different month names, right? So you have to then change these things based on the values available. Okay, then value count. So for an individual value, how many value counts are there? So you can use this value counts, right? So it will show how many occurrences are there for Saturday, how many occurrences are there for Sunday, how many occurrences for Thursday, and how many occurrences are there for Friday. So this also is available, right? Then if you want to apply some functions or on the data frame, so that also you can apply. So suppose I am just creating a normal data frame, and here I am what I'm doing is times 2, and I am returning x into 2, and this function is applied on the score, right? So whatever score is there, the score will be doubled on in this, right? Okay, this is times function, and now I'm applying this. Okay, so now you can see here all the values are just doubled out of it. Okay, in the same way you can apply using the lambda function as well. So lambda function can be applied on one column, and then if you want to sort the data, then you can apply the sort function, sort values function. So sort values will sort the data based on the given thing, right? So suppose I am sorting based on the blood group, so it will sort the data based on the blood group. You can see over here. Okay. If you want to sort based on the score, you can write the score also. And why I am using this in place is equal to true? Can anybody tell? कोई बता सकता है why I am using this in place is equal to true? I have already discussed. Just I wanted to confirm that you people are studying or not. Why am I using this in place is equal to true? Anyone? Vishesh, Raj, Yogesh, Abhishek, Aarti. No one? जो वैल्यू जो ब्लड ग्रुप अगर होगा तो वो मतलब तभी रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका तो यही है ना। क्या होगा फिर से? कैन यू प्लीज रिपीट? सर जैसे किसी का ब्लड ग्रुप जैसे जो है, अगर हाँ, वहां पे कोई वैल्यू नहीं होगी तो ये उसको रिटर्न नहीं करेगा ना। यहाँ पे रिटर्न का क्या है? यहाँ तो फंक्शन तो है ही नहीं, तो रिटर्न का कहाँ से आ गया भाई? यहाँ तो सिर्फ सॉर्टिंग हो रही है। सॉर्टिंग में क्या होगा? सॉर्टिंग में तो आपस में वैल्यूज कंपेयर होंगी। यहाँ पे रिटर्न का तो सवाल ही नहीं उठता है। कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। वेरी सैड टू नो। You people are not practicing at all. सो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने चेंजेस को परमानेंट फाइल में करना होता है। अगर हम यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं करेंगे
तो टेम्परेली ये डेटा सॉर्ट होगा और इसके बाद जब आप देखोगे तो डेटा एज इट इज वापस दिखाई देगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू किया है तो वो डेटा फिर परमानेंट सॉर्टेड ऑर्डर में ही सेव हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, सो लेट मी शो यू हाउ दिस इज वर्किंग। तो मैंने यहाँ पे इसको फिर से एग्जीक्यूट कराया। अभी अगर हम यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स करते हैं, राइट, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हुआ और ये यहाँ पे आपको सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन फिर से जब हम यहाँ पे पीपल अंडरस्कोर डीएफ करेंगे, ये फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रू करते हैं तो अब ये जो चेंज, अब इसने यहाँ पे चेंजेस शो नहीं करेगा क्योंकि इसने अब डेटा में सेव कर दिया, राइट। और यहाँ पे हम जब उसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे अब देखो डेटा में सेव है वो ऑलरेडी जो हमने चेंजेस किए हैं, राइट। इन द सेम वे हम यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं तो स्कोर को सॉर्ट कर रहे हैं, हमने स्कोर को सॉर्ट किया। अभी यहाँ पे देखो स्कोर यहाँ पे हमें यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरह तो ये छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ही यही है कि अगर जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, जो भी सॉर्टिंग कर रहे हो, जो भी रिवर्सिंग कर रहे हो, कुछ भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, उसको आप परमानेंटली सेव करना चाहते हो तो हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू देंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स होता ही है। अगर आप नहीं दोगे तो वो जो चेंजेस आपने किए हैं कमांड के साथ में वो सेव नहीं होंगे। ओके, नाउ यहाँ पे एक छोटा सा एक फाइल ली हुई है जिसमें यहाँ पे टाइम सीरीज इन पैंडास लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये जो केप टाउन में जो एयर क्वालिटी है उसका डेटा लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये फाइल आ गई हमारे पास, राइट। और इस फाइल में हमारे पास है डेटा, CSV फाइल है। इसमें आप देख सकते हो हमारे पास टॉप 10 रोज आ गई हैं। टॉप 10 रोज में हमारे पास डेट है, टाइम है, देन एयर में जो अलग अलग उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनके यहाँ पे लेवल्स अलग अलग दिन पे डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ओवरऑल कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना पीटी है, कितना NMHC C6H6, सो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। अब इसके केमिकल नेम मुझे नहीं पता है, मैं जस्ट यहाँ पे देख रहा हूँ आपके सामने, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं डी टाइप। तो सबके टाइप्स यहाँ पे हमें दिखाई दे गए। तो यहाँ पे डेट और टाइम दोनों ऑब्जेक्ट हैं। देन यहाँ पे कुछ फ्लोट वैल्यूज हैं, कुछ इंटीजर वैल्यूज है। लेट्स सी, तो अब यहाँ पे हम डिस्क्राइब को यूज करते हैं। डेटा डॉट डिस्क्राइब, यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब और इंक्लूड ऑल, राइट। तो डेटा डॉट डिस्क्राइब क्या करता है, जैसा हमने पहले पढ़ा था, डेटा डॉट डिस्क्राइब जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनकी जो स्टैटिस्टिकल समरी है वो हमें यहाँ पे लाके दे देता है। तो कितना काउंट है, फिर कितने यूनिक वैल्यूज हैं, कितने टॉप में कितने, जो जो टॉप वैल्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। सो यहाँ पे वो सबके लिए यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमने यहाँ पे इसकी इन्फो भी देख लेते। तो इन्फो में हमें पता लग 9,357, 9,357 यहाँ पे टोटल एंट्रीज हैं। हम 5 फ्लोट हैं, 8 इंटीजर है और 2 ऑब्जेक्ट हैं। ओके, अब यहाँ पे वन बाय वन हम पहले कन्वर्ट करते हैं इनको जिस फॉर्म में हमें चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेट हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में है और टाइम भी हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो जब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो हम इन पे कोई भी ऑपरेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट और टाइम को हमें डेट और टाइम के फॉर्मेट में चेंज करना होगा, राइट। सबसे पहले हमने डेट उठाया और यहाँ पे हमने फंक्शन डाला टू डेट टाइम, और टू डेट टाइम में हमने यहाँ पे डेट को हमने फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में मंथ, डेट और ईयर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, राइट। तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसी अब यहाँ पे हम टाइम देखते हैं। तो टाइम हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है। सो लेट्स सी कि हम टाइम को भी कन्वर्ट, वैसे टाइम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली डेट को ही कन्वर्ट करना था जिससे हम डेट से रिलेटेड ऑपरेशंस आसानी से लगा पाए, ठीक है।
फिर यहाँ पे यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं और कैसे हमें ये डालना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू काउंट है, तो वैल्यू काउंट में अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NMHC यहाँ पे वैल्यू काउंट है। वैल्यू काउंट में जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास यूनिक वैल्यूज है, ये -200 से स्टार्ट होके 307 तक जा रही है। राइट। तो अब -200 का मतलब क्या है कि, एंड यू कैन सी कि हमारे पास एक अच्छी खासी वैल्यूज हैं जिसमें जिसमें यहाँ पे हमारे पास 8443 वैल्यूज है। टोटल हमारे पास लगभग 9300 समथिंग वैल्यूज है, उसमें 8400 तो -200 है। और अब अगर हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जो माइनस में हो। राइट। वो बहुत कम होगा तो जीरो के आसपास होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो माइनस में प्रेजेंट हो रहा है। राइट। अब जैसे कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो कभी माइनस में नहीं हो सकती, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। So number of students in the class can be one or two. It cannot be -1 or -2 or -100, right? तो इसी तरह से जो एयर पॉल्यूशन लेवल है या जो एयर एयर क्वालिटी है, उसमें कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो या तो एग्जिस्ट कर रहा होगा या नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निगेटिवली एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो इट शुड बी ऑलवेज मोर देन जीरो। ओके। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अब यहाँ पे -200 दिया हुआ है, तो -200 का मतलब है कि ये कुछ गलत वैल्यू है, और ज्यादातर रोज में ये गलत वैल्यू है। ठीक है। तो हमें ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कंफर्म करके भी देखें कि पूरे डेटा में हमारे पास -200 NMHC में कितनी कितनी वैल्यूज है, तो यहाँ पे हमें 8443 वैल्यूज हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। फिर तो हमने यहाँ पे क्या किया, AIR_DF.drop, तो ड्रॉप के साथ में कॉलम नेम देने पे ये कॉलम यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। अब ये आपके डेटा का पार्ट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो NMHC कहाँ पे आ रहा है, NMHMC यहीं पे आ रहा है, लेकिन अभी अगर यहाँ पे देखोगे आके तो यहाँ पे NMHC नहीं आ रहा है। डे टाइम की वजह, डे टाइम के बाद ही आ रहा था। राइट। तो अब वहाँ पे वो नहीं, वो वैल्यू पर्टिकुलरली दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1 क्यों किया है, यहाँ पे हमने एक्सेस इज इक्वल टू 1 क्यों किया है, एनीवन? हमने यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1 इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम से डिलीट कर रहे हैं। तो कॉलम से डिलीट करने में एक्सेस इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। अगर हम रो से डिलीट करते हैं तो एक्सेस इक्वल टू 0 देना होगा। ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को याद नहीं है बस। ठीक है। इसी डॉक्यूमेंट में ऊपर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे हम टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऊपर हमने डेट को डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। अब फंक्शन वही है, टू_डेट टाइम फंक्शन है, और बस यहाँ पे फॉर्मेट हम चेंज कर रहे थे। यहाँ पे आवर्स मिनट्स एंड सेकंड में दिया, और इसके बाद जब अब हम यहाँ पे डी टाइप चेक कर रहे हैं, तो डी टाइप चेक करने पे हमारे पास डेट टाइम फॉर्मेट में है, जो कि हमने कन्वर्ट किया है। NMHC अभी, अच्छा ये पुराना वाला ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि हमें हमारे पास सारी वैल्यूज है। ठीक है। देन और यहाँ पे हमें सपोज खाली ईयर लेने हैं, ईयर फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पे ईयर फंक्शन लिया। और अब आप क्योंकि यहाँ पे ये डेट टाइम फॉर्मेट में हो चुका है, तो आप इससे ईयर आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, AIR_DF.date.dt.year, राइट। तो AIR_DF हमारा डेटा फ्रेम का नाम है। डेट हमारे उसके अंदर एक पैकेज का नाम है, और DT.year उसके अंदर मॉड्यूल का नाम है। ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि हमारे टॉप वैल्यूज क्या क्या हैं। ठीक है। देन ईयर.वैल्यू काउंट, सो ईयर.वैल्यू काउंट्स क्या करता है कि ये पर्टिकुलर काउंट कर रहा है कि जो ईयर्स में जो वैल्यू, तो अब यहाँ पे जो डेटा है 2004 और 2005 का डेटा है। राइट। तो अगर आप यहाँ पे यूनिक बना के देखोगे
तो यहाँ पे अब इसके इसके ऊपर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। अम, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ईयर, यहाँ पे एयर अंडरस्कोर डी एफ ऑफ, और यहाँ पे हमने दिया ईयर, ये टाइम यहाँ पे डेट था, तो डेट से हमने ईयर फाइंड आउट किया है। हाँ तो यहाँ पे हम ईयर ले लेते हैं, ईयर, और इसमें हम यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करने की, ईयर डॉट यूनिक, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पहले फाइंड आउट किया था यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे भी यूनिक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यूनिक वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेंगी, तो 2004 और 2005। अच्छा, ये डेटा फ्रेम नहीं है, ये डेटा फ्रेम नहीं है, तो डेटा फ्रेम में ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हाँ, ये हमारा, इसको हमने अलग अलग वेरिएबल में कर लिया है, तो अब ये इसको हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यूनिक वैल्यू दिखाई दे रही है, तो ये हमारे पास 2000 और 2004 और 2005, यही दोनों यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ईयर डॉट वैल्यू काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 2004 में कितना डेटा है, 7000 के आसपास है। 2005 में हमारे पास 2200 वैल्यूज है, और 22 40 47 ये वैल्यूज हमारे पास हैं, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे हम मंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मंथ हैं। तो यहाँ पे मंथ के नंबर हमें यहाँ पे मिल गए, तो यहाँ पे मोस्टली हमें नंबर यहाँ पे 3 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हेड है, तो यहाँ पे टॉप वही उसी से स्टार्ट हुआ होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हेड में मोस्टली, हाँ, ये मार्च से ही देखो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जब हेड में तो मार्च की वैल्यू आ रही है, लेकिन आगे अगर हम देखते हैं 9000, 9 साढ़े 9 हजार का डेटा है, तो अगर हम आगे देखेंगे तो मंथ डॉट वैल्यू काउंट, तो यहाँ पे हमारे पास और भी वैल्यूज आ रही है, 3 4 5 7 8, राइट। ये हमारे पास सारी यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, और उनका हम वैल्यू काउंट यहाँ पे उठा के देख सकते हैं, तो वैल्यू काउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मंथ देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास 12 यूनिक वैल्यूज हैं मंथ में। और इंडिविजुअल वैल्यूज उसमें सबसे ज़्यादा मार्च की वैल्यूज है 12, 1254 वैल्यूज मार्च की वैल्यूज हैं, बाकी दूसरी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने वैल्यू काउंट फाइंड आउट कर लिया कि इंडिविजुअल वैल्यूज का वहाँ पे काउंट कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिक मंथ्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिक मंथ 12 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ डॉट एन यूनिक हमने दे दिया, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे डे वाइज देख सकते हो, तो डे यहाँ पे डे कौन सा है उसका, तो यू कैन एक्सट्रैक्ट द डे। तो डे मीन्स उसकी डेट, ओके। सो यहाँ पे अगर हम इसमें यूनिक चेक करेंगे, तो यहाँ पे 31 यूनिक वैल्यूज है, तो डेट्स जितनी पॉसिबल है 31 तक ही पॉसिबल है, इससे इसके अलावा डेट नहीं हो सकती, राइट। एंड इसी तरह से यहाँ पे हमने इसको यहाँ फाइंड आउट किया है और देखा है, ठीक है। सो इसको भी यहाँ पे ये लोग चेंज कर रहे हैं, सो इन फ्यूचर ये चीज़ वर्क नहीं करने वाली, राइट। So I have to change this as well. Um, तो यहाँ पे ये कौन सा वीक डे है, वो हमें फाइंड आउट करके दे रहा है। वीक ऑफ हेड, यहाँ पे 5 वैल्यूज है। और यहाँ पे मंडे मंडे स्टार्ट करता है, मंडे को एज अ 0 कंसीडर करता है। देन ट्यूसडे एज 1, इन द सेम वे संडे का इंडेक्स होगा 6, राइट। तो उसी के बेस पे आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा डे ऑफ वीक, राइट। सो डे ऑफ वीक से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, सॉरी, डे ऑफ वीक से हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे कौन सा दिन है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 का मतलब ये वेडनेसडे है, ठीक है। अम, उसको
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप डे ऑफ ईयर कौन सा है, तो ये 70th डे ऑफ ईयर है। यहाँ पे वीक ऑफ ईयर कौन सा है, तो ये 11th वीक चल रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप और भी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हो तो वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे यहाँ पे डे अंडरस्कोर नेम, और यहाँ सॉरी यहाँ पे वीक नेम हम कर देते हैं। ये बेसिकली वीक नेम है, वीक नंबर है, वीक नंबर, वीक नंबर। और यहाँ पे हम इसको इसमें अपन डाल देते हैं वीक नंबर, और वीक नंबर डॉट यूनिक फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया और यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास साल का कौन सा वीक है वो आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 52 या 53 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब वैसे एक साल में 52 वीक होते हैं, लेकिन 53 यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे, सपोज अगर हम यहाँ पे काउंट इसी जगह, हाँ चलो यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं 52 इंटू अगर 7 करके देखते हैं, तो 52 इंटू 7 में हमारे पास 364 डेज हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लो 365 डेज है, तो 365 डे क्या कंसीडर होगा, वो 53rd वीक में आ जाएगा। या 366 डे है तो वो भी थर्ड वो भी 53rd वीक में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 53 भी आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको ये नहीं समझना है कि ये चीज़ कुछ गलत आ रही है। ठीक है, ये सही दे रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिक वीक इन ईयर हमारे पास कितने आ रहे हैं, हमारे पास 53 आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 53 हो सकता है, इससे ज़्यादा अगर 53 से ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज इट इज़ फाइन। ओके, देन डे ऑफ ईयर कौन सा है, तो डे ऑफ ईयर यहाँ पे आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, डे ऑफ ईयर फंक्शंस यूज करके। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो और इम्प्लीमेंट करके और यहाँ पे लगा सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने पैंडास पैकेज में, तो पैंडास पैकेज में हमने अभी तक जो देखा है वो डेट टाइप फॉर्मेट वगैरह देख लिया है हमने, और रिट्रीव वीक वीक डिटेल्स और डे डिटेल। ठीक है, तो ओवरऑल इस पैंडास में आप फाइल्स पे काम कर सकते हो, आप उनको सॉर्ट कर सकते हो, आप यूनिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब आप किसी डेटा पे काम करते हो तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको फाइंड आउट करनी ही होती हैं, राइट। आई शेयर डेटा फाइल विद यू टुडे इन ग्रुप। आप उसको इंपोर्ट करके और इस तरह के जो छोटे छोटे कमांड हैं उनको लगा के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि इसमें क्या 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 है, और आप इनको कैसे कैसे मैनेज करके और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं दो दो या तीन डेटा फाइल आपके साथ में शेयर करूंगा आज। तो आप लोगों का ये वीकेंड का असाइनमेंट यही है कि यू हैव टू अप्लाई ऑल द pandas related function, and you have to find कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। so let me share right away। ओके, मैं दो तीन तीन डेटा सेट में आज ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सर ये मैं बोल रहा था कि नमपाई वाला असाइनमेंट और पहले जो चली थी वो भी दे देते हैं। मैं असाइनमेंट अलग से शेयर करूंगा, ये मैं सिर्फ डेटा फाइल शेयर कर रहा हूँ। तो आपको इसमें सिर्फ जितने भी फंक्शन आपने देखे हैं अभी वो सारे अप्लाई करके डालने हैं डेटा में। ठीक है, मैं जो नंपाई और पैंडास का असाइनमेंट है वो मैं अलग से शेयर करूंगा। ठीक है, सो आई अच्छा हैव ठीक है। शेयर्ड द डेटा इन द ग्रुप। यू कैन चेक, आपके ग्रुप पे आ गया होगा। जी सर। ठीक है, तो आप इस पे अपनी जो प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट कर सकते हो, और प्रैक्टिस करके और यू यू कैन कम बैक टू मी इफ़ यू हैव एनी डाउट। तो अब बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको हर कॉलम में जाना है, वहाँ पे देखना है कि उसमें
यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं, कितनी यूनिक वैल्यूज है, और हर यूनिक वैल्यू के काउंट कितने हैं। ठीक है, अगर डेट टाइम से रिलेटेड कोई कोई चीज़ है तो उसमें आपको डे डे से रिलेटेड डिटेल निकालनी है। तो मंथ कितने हैं, वीक कितने हैं, मंथ के नेम क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करके और रिप्रेजेंट करोगे। सो ऑन मंडे, मंडे जब हम मिलेंगे अपनी क्लास के लिए, सो मंडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू पीपल टू स्पीक अप एंड टेल व्हाट इज योर फाइंडिंग विद द डेटा। ओके, यू रिमेम्बर मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि आपको जब डेटा एज अ डेटा एनालिस्ट आप जॉब करते हो, तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन. So for that practice, I want you to um, um, present. Okay. मैं numpy एंड pandas के असाइनमेंट भी शेयर कर देता हूँ राइट अवे। आई विल शेयर, नहीं तो फिर बाद में रह जाता है। So I have shared the assignment in your groups. So सर वो भी शेयर कर देते हैं जो पहले पढ़ाई थी, डाटा टाइप, ये लूप वगैरह।